الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على سيد النبي الكمال وعلى آله وأصحابه الجمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اس رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور اس پوری کائنات کو وجود بخشا. بعدہ درود و سلام نازل ہو اس نبی اکرم محبوب مکرم رسول معظم یعنی جن کو ساری کائنات کے رب نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر شمار فرمایا. ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ امت مصطفیٰ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں شمار فرمائے گئے. بعدہ مزید مشترکہ خوش نصیبی یہ ہے کہ امت مصطفیٰ میں یعنی مسلک حق مسلک اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت میں شمار فرمائے گئے. ابھی ہمارے اور آپ کے بیچ آپ کے خطیب و امام آپ کے تراویح کے امام آپ کے فرائض و واجبات کے امام حافظ صاحب قبلہ نے قرآن شریف کی تکمیل فرمائی ہے. اس کی مناسبت سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کعبہ ہمارے اس سننے کو اور ہمارے اس سنانے کو قبول فرما لے اور اس محفل پاک کی شرکت کو ہمارے اور آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے. ہم نے پڑھا ہے انہ لقرآن کریم. ہم نے بھی اسی مناسبت سے قرآن شریف کی ایک آیت مقدسہ کا تلاوت کیا. تھوڑی سی گفتگو میں اس پر کروں گا آپ حضرات سے اور بیسیکلی بات کروں گا تاکہ آپ کو کچھ سمجھ میں آئے کہ قرآن کیا ہے اور قرآن پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے. اس سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی الحبیب صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلو علی الحبیب صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہم نے 2 مرتبہ آپ سے کہا کہ بھائی درود پڑھیں. پھر بھی کچھ ایسا چہرہ ہمارے سامنے روبرو ہوا اس کے لفظ نہ جانے انہوں نے دل میں پڑھا یا زبان سے پڑھا یا کہاں پڑھا. جن کو جو بھی درود شریف یاد ہو وہ پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم صلاة وسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تکمیل قرآن کی محفل ہے یہ. قرآن مکمل انہوں نے کیا. اسی مناسبت سے آپ سب نے مل کر اس محفل کو سجایا ہے. اس محفل کا نام کیا ہے؟ تکمیل قرآن. بعض حضرات ختم قرآن سے بھی اسے موسوم کیا کرتے ہیں لیکن اصح یہ ہے کہ تکمیل قرآن کہا جائے چونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. آپ اس فراق میں نہ رہیں کہ حافظ صاحب نے سورہ ناس کے آخری حرف تک پڑھ لیا ہے تو اب ہم بری ہو گئے. سب سے پہلے اس محفل میں تمام کے تمام شرکا یہ کہ ذہن بنا لے کہ جیسے ہم نے آج تک ایک رمضان سے لے کر ابھی تک
तरावी का एहतमाम किया है और तरावी को पढ़ा है, वैसे ही 29 रमजान तक पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। या अगर 30 रमजान पूरे हो गए तो फिर 30 रमजान तो तरावी रात में नहीं पढ़ना है, चूंकि उस दिन ईद का चांद नजर आ गया। इसीलिए 29 रमजान तक पढ़ने का एहतमाम करें। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। अगर कोई शख्स आज तक पढ़ लिया और कल से ना पढ़ा, अब वो ये सोचेगा कि मैं तो बरी हो गया, मैं तो सवाब का मुस्तहिक हो गया, अब तो सवाब की जो इस्तेहकाकियत है वो हम पर माइल हो गई, तो हरगिज ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, वही इंसान सवाब का मुस्तहिक होगा तरावी के और कुरान की समाअत का सवाब का मुस्तहिक होगा। तो वो हर वो शख्स जो 29 रमजान तक तरावी का एहतमाम करेगा। सबसे पहला ज़हन। दूसरा ज़हन, आपने कुरान पढ़ा, कुरान सुना, कोई शख्स पूछे कि कुरान किसे कहते हैं, कुरान का माना क्या है, तो क्या जवाब देंगे? उलमा ने फरमाया है, अइम्मा लुगत हज़रत इमामुल लुगत हज़रत अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी ने मुंजिद में इसका तर्जुमा फरमाया है, कुरान के दो माना है। पहला माना पढ़ना। अब कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक और दक्षिण से उत्तर तक जितनी किताबें हैं, उन तमाम किताबों में अगर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है तो कोई और किताब नहीं बल्कि हमारी और आपकी किताब किताबुल्लाह यानी कि कुरान मजीद है। इसीलिए कुरान को कुरान कहते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। दूसरा माना उलमा ने फरमाया है मिलना है। अब कुरान का माना मिलना है, तो मिलना किस एतबार से है भाई? तो अब आप देखें, कुरान की हर एक आयत दूसरी आयत से मिली हुई है, दूसरी आयत तीसरी आयत से मिली हुई है, तीसरी आयत चौथी आयत से मिली हुई है, पांचवी आयत छठी आयत से मिली हुई है, छठी आयत सातवीं आयत से मिली हुई है। आप पीछे पलटेंगे तब बात समझ में आएगी। सातवीं आयत छठी आयत से मिली है, छठी आयत पांचवी आयत से मिली है, पांचवी आयत चौथी आयत से मिली है, चौथी आयत तीसरी आयत से मिली है, तीसरी आयत दूसरी आयत से मिली है, दूसरी आयत पहली आयत से मिली है। कुरान की जितनी सूरतें हैं, तमाम की तमाम सूरतें दूसरी सूरत से मिली हुई है, दूसरी तीसरी से मिली है, तीसरी चौथी से मिली है। ऐसे ही करके नास तक जितनी सूरतें हैं, हर एक सूरत दूसरी सूरत से मिली है। और जितनी आयत हैं, तमाम की तमाम आयतें हर एक दूसरे से मिली हुई है। इसीलिए कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं कि कुरान के तमाम आयत और कुरान की तमाम सूरतें हर एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि मिली हुई है। इसीलिए उलमा ने फरमाया है कुरान को कुरान कहते हैं। सुभान अल्लाह। पहली बात, कुरान की तारीफ किया है। अगर कोई शख्स कोई सरफिरा आके पूछ ले, मियाँ कुरान कुरान रखते हो, कुरान कहते किसे हैं? तो मुल्ला जीवन ने नूरुल अनवार में फरमाया है, ये नूरुल अनवार एक ऐसी किताब है कि हमारे हिंदू पाक के अंदर जितने भी मदारिस इस्लामिया हैं, सब में सिलेबस के तौर पर दाखिल हैं, सब में दाखिल निसाब है। उन्होंने फरमाया है अल कुरानुल मुनज़्ज़ल मक्तूब अल कुरानुल मुनज़्ज़ल अला रसूल अलैहि सलातु व तस्लीम वल मक्तूब फिल मुसाहफ। कुरान वो है जो हुजूर अलैहि सलातु व तस्लीम पर नाजिल फरमाई गई और जो मुसाहफ में लिखा गया है। क्या मतलब? जो कागजात के नुकूश पर लिखा गया है। अब तारीफ पर आप गौर करें। उलमा ने फरमाया है कुरान वो है जो हमारे आका पर नाजिल की गई है। अब बस इसी से इसकी एक इम्तियाजी खुसूसियत निकाल ले, इसी से बस एक इसका तुर्रे इम्तियाज निकाल ले। एक दूसरी किताब होती है जो बायो के नाम से जानी जाती है, तीसरी किताब होती है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के नाम से जानी जाती है, चौथी किताबें होती है मैथमेटिक्स के नाम से जानी जाती है। ना जाने दुनिया में कितनी किताबें हैं और उन तमाम किताबों के कितने नाम हैं, लेकिन किसी न किसी का राइटर नजर आता है, किसी न किसी का लेखक नजर आता है, किसी न किसी का मुरत्तिब नजर आता है, किसी न किसी का मुसन्निफ नजर आता है। अगर दुनिया की तमाम किताबों में अगर किसी का कोई राइटर नहीं है, अगर वो अल्लाह गिफ्टेड किताब है, तो दुनिया की तमाम किताबों में बिला शक व शुबा वो हमारी और आपकी किताब कुरान मजीद, कुरान मजीद फुरकान हमीद किताबुल्लाह और कलामुल्लाह है। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा है और हमारे हुजूर पर नाज़िल फरमाया। अरे ये सब रखें, आप तशरीफ रखें, बस 2 से 4 मिनट।
लोगों को गेट भी बंद हो जाता है, जल्दी खत्म करना है ना, गेट खत्म हो जाता है, रखें आप लोग बंद बस। हो जाता है। कुछ लोग हैं नरेना गाँव के जो गेट बंद यार मैं कोई खतीब आदमी नहीं हूँ यार, मैं बस एक मुदर्रिस आदमी हूँ। जब जो बोलता है खड़ा होने को हो जाते हैं और शुरू हो जाते हैं बस कहीं से। इधर आइए वहाँ शायद, इधर आइए, अरे इधर आइए आप, मैं बुला रहा हूँ, आप आइए, बुलाइए इनको। बाबू बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। जो जहाँ है वहीं बैठ जाए। एक मतलब दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जल्ली व कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने भी पुराने मस्जिद हैं या वो हमारे खान साहब हो, इकबाल साहब हो या कोई साहब हो, बस 5 से 10 मिनट के लिए आप हमको सुन लें। अगर आप जल्दी बैठ जाएंगे तो फिर औकात जल्दी बंद हो जाएगा। बस बैठे आप, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान का माना मालूम हुआ? कुरान के 2 माना हमने बयान किए, मालूम हो गया। कुरान किसको कहते हैं वो भी हमने बता दिया, क्लियर है। अब कुरान क्या है, बस कुरान ये है क्या। अब उलमा से पूछें, फिर हमारे उलमा बयान करेंगे। अरे वो कुरान में अबू लहब का तस्करा हो, अबू जहल का तस्करा हो, या सहाबियों में हजरत उमर का तस्करा हो, या सिद्दीक़ अकबर का तस्करा हो, गर्ज के साबिक अंबिया किराम और रसूलान इज़ाम का तस्करा और वाक़या हो, यानी कि बिस्मिल्लाह के बाद से लेकर वन्नास की सीन तक कुरान में जितनी आयतें हैं, कुरान में जितने हुरूफ हैं, सब के सब हमारे आका और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात है। सुभान अल्लाह। कोई पूछे कुरान क्या है तो वहां चुपिएगा नहीं, जवाब दे दीजिएगा। कुरान नाते मुस्तफा है। कुरान क्या है? कुरान तारीफ मुस्तफा है। कुरान क्या है? कुरान महासिन मुस्तफा है। कुरान क्या है? कुरान महामिद मुस्तफा है। अरे कुरान क्या है? अजमत मुस्तफा का नाम कुरान है, तकद्दुस मुस्तफा का नाम कुरान है, नामुस रिसालत का नाम कुरान है। कुरान क्या है? तो हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली हुई तारीफ का नाम कुरान है। पूछे कैसे? अब मैं एक जवाब देता हूँ। कुरान में आया कुल हुवल्लाहु अहद, इसका तर्जुमा क्या है? ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये आयत भी नाते मुस्तफा है। अब पूछे कैसे? इसको समझने की जरूरत है। तर्जुमा तो ये हुआ कुल हुवल्लाहु अहद, आप फरमा दीजिए ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, यानी कि रब तबारक व तआला हुजूर से कह रहा है क्या कि आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। बज़ाहिर तो ये बात समझ में आ रही है कि इस आयत में वहदानियत खुदा का जिक्र है, रब तबारक व तआला की तौहीद होने का जिक्र है, रब तबारक व तआला के एक होने का जिक्र है, रब तबारक व तआला के यकताई का जिक्र है। यहाँ बात ये समझ में नहीं आ रही है कि ये आयत नाते मुस्तफा कैसे है, इस आयत में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तारीफ कैसे है। अरे ओ अक्ल के अंधो, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे जन्म लिए हैं जो रब तबारक व तआला की वहदानियत को इकरार तो जरूर करते हैं कि अल्लाह एक है, रब तबारक व तआला की तौहीद के कायल तो जरूर है कि अल्लाह एक है, रब तबारक व तआला को एक तो जरूर मानते हैं कि अल्लाह एक है। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो डायरेक्ट ये कहते हैं कि अल्लाह एक है, डायरेक्ट ये कहते हैं कि अल्लाह यक्ता है, उनकी बात काबिल कबूल नहीं। उन्हीं की बात काबिल कबूल होगी जो हुजूर के कहे से माने, फिर मान के ये कहे कि अल्लाह एक है। आप पूछे क्यों, तो जवाब ये होगा कुरान ने ये कहा कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ मोहम्मद आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। यानी कि रब तबारक व तआला की वहदानियत का जिक्र तो जरूर है, लेकिन जिस जबान से जिक्र हो रहा है वहदानियत का, वो हमारे और आपकी जबान नहीं है बल्कि रसूल पाक की जबान। बेशक सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, रिसालत या रसूल अल्लाह और क़यामत मरहबा। अब आप खुद बोले इस आयत में भी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तारीफ है या नहीं? तारीफ है या नहीं? अब मैं एक ऐसी आयत के जुज़ को पेश करने जा रहा हूँ जिस पर मैं ये कहूँगा
یقیناً کہوں گا کہ یہ بھی عظمت مصطفیٰ ہے، یہ بھی تعریف مصطفیٰ ہے، آپ چونک جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں آج سے 1400 سال پہلے ابو لہب مرا تھا نا، اسی ابو لہب کا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے، وتب، اور ہلاک بھی ہو گیا۔ بظاہر اس آیت میں تو ذکر یہ ہے کہ ابو لہب کی ہلاکت کا ذکر ہے، ابو لہب ہلاک ہو گیا ہے، ابو لہب مر گیا ہے، ابو لہب انتقال کر گیا ہے۔ اس آیت میں ذکر تو یہی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ آیت بھی تعریف مصطفیٰ ہے، یہ آیت بھی ثناء مصطفیٰ ہے، یہ آیت بھی محاسن مصطفیٰ میں سے ہے۔ آپ پھر پوچھیں گے مولانا بتائیں، اے خطیب صاحب آپ بتائیں یہ آیت مصطفیٰ کی تعریف کیسے ہے، یہ آیت مصطفیٰ کی عظمت کو اظہار کیسے کر رہی ہے؟ تب ہمارے علماء یہ بیان کریں گے یہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے کسی مقام پر ابو لہب نے حضور سے فرمایا تھا تبا لکا، تبا لکا، یعنی کہ اے محمد تو برباد ہو جائے، اے محمد تو برباد ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کو ابو لہب کا یہ بولنا اتنا ناگوار گزرا، اتنا ناراضگی کے ساتھ گزرا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت کو نازل فرمایا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب ہلاک ہو جائے، وہ تبا، اور ہلاک بھی ہو گیا۔ یعنی کہ ابو لہب کا حضور کو الٹا سیدھا بولنا رب تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، ابو لہب کی ہلاکت بھی ہو گئی اور ہمارے مصطفیٰ کی تعریف بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ رب نے فرمایا ہے من عاد لی ولیا فقد ضدہ بالحرب، ہم جس نے ہمارے دوست سے جنگ کیا میں اسے دشمنی کا اعلان کرتا ہوں۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ ہی کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرنا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور کو الٹا سیدھا کہنا یہ ایمان سے خالی نہیں ہے، تم اس کو یہ کہہ دینا اگر حضور کی نظر میں جو عبادت گناہ ہو وہ عبادت بھی گناہ ہے، اگر حضور کی نظر میں جو گناہ عبادت ہو، جو غلطی عبادت ہو وہ غلطی بھی عبادت ہے بلکہ عین عبادت ہے۔ آپ دیکھیں عصر کی نماز فرض ہے یا نہیں؟ جو اس کو ترک کرے گا وہ گناہ کا مستحق ہوگا، جو اس کو ترک کرے گا عذاب قبر کا مستحق ہوگا، عذاب نار کا مستحق ہوگا۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے مقام صحبہ میں حضرت علی نے عصر کی نماز کو قضا کر کے اپنے حضور کی محبت کو اپنے سینے میں پیوست کیا ہے۔ اب بات یہ سمجھ میں آئی جو عین عبادت ہو اگر حضور کو ایزا دے تو وہ عین عبادت نہیں، عین گناہ ہے، اور جو گناہ ہو حضور کو محبت پہنچائے وہ گناہ نہیں بلکہ عین عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مثال، صاحب کا اپنے آپ کو ڈفا لینا یہ گناہ ہے، خودکشی ہے۔ اب آپ آئیں کار میں حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت صدیق اکبر ہیں، انہوں نے صاحب سے اپنے آپ کو ڈفا لیا، لیکن یہ انہوں نے نہیں چاہا کہ میرے آقا کی نیند میں خلل واقع ہو۔ اب آپ سوچیں یہ گناہ تو ہے لیکن آقا کی نیند میں خلل واقع نہ ہو، آقا کو ایزا نہ پہنچے، آقا کو تکلیف نہ پہنچے، اس معنی میں یہ گناہ نہیں بلکہ عین عبادت ہے۔ ایک مثال اور، بس ایک مثال، ہم نے کہا ہے نا کہ پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، پورا قرآن محاسن مصطفیٰ کا مرکز ہے، محامد مصطفیٰ کا مرکز ہے، تقدس مصطفیٰ کا مرکز ہے، ناموس رسالت کا مرکز ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ بس ایک بات، قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو، قرآن نے کہا زکات دو، قرآن نے کہا حج کرو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا قرآن میں یہ لکھا گیا ہے کہ قیام اتنی دیر کرنا، ثنا پڑھنا؟ کیا قرآن میں یہ لکھا گیا ہے کہ رکوع کرنا؟ کیا قرآن میں یہ لکھا گیا ہے؟ ہاں رکوع کرنے کا ذکر تو ہے۔ کیا قرآن میں یہ لکھا گیا ہے کہ رکوع میں جانا تو سبحان ربی العظیم پڑھنا، سجدے میں جانا تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، رکوع سے کھڑا ہونا تو سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد پڑھنا، قاعدے میں بیٹھنا تحیات پڑھنا، قاعدے میں بیٹھنا درود پڑھنا، قاعدے میں بیٹھنا دعائے معصورہ پڑھنا؟ کیا حاجیوں کے حوالے سے قرآن میں یہ تو لکھ دیا گیا کہ اے لوگوں اگر تمہارے اندر استطاعت ہے اس بارگاہ میں جانے کی تو تم حج کرو، یعنی کہ تم پر حج فرض ہے؟ کیا قرآن میں یہ لکھا گیا کہ مزدلفہ میں ٹھہرنا؟ کیا قرآن میں یہ لکھا گیا کہ
रब तबारक व तआला के घर का तवाफ करना, क्या कुरान में ये लिखा गया कि रब तबारक व तआला की जो निशानियां हैं सफा और मरवा के दरमियान सही करना? क्या कुरान में ये लिखा गया कि वहां दौड़ना वहां रुकना, वहां रुकना वहां दौड़ना? हरगिज़ कुरान में नहीं लिखा गया। अरे कुरान में नमाज के मुताल्लिक़ सिर्फ इतना लिखा गया कि नमाज कायम करो, जमात के साथ पढ़ो, वक़्फ़ु मअ राकिईन के ज़ुमरे में लिखा गया जमात के साथ पढ़ो। हज के मुताल्लिक़ सिर्फ इतना लिखा गया कि हज करो। कुरान से ये बात तो मालूम हो गई कि नमाज हम पे फर्ज है, ज़कात हम पे फर्ज है, हज हम पे फर्ज है, लेकिन ये नहीं लिखा गया कैसे पढ़ना है, कैसे अदा करना है। अगर नमाज की अदायगी का तरीका देखना हो तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नमाज के अदा को देख लेना। अगर हज के अदायगी का तरीका देखना हो तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तरीक़े हज की अदा को देख लेना। क्या मतलब ये हुआ कि कुरान नाते मुस्तफा इस माने में ली है कि खुदा के अहकाम जितने हैं सबकी इजमाली तफसीर कुरान में, और सबकी तफसीर अगर किसी किताब में है तो बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है। गोया के अलगज़ की जितनी इबादतें हैं ये सब के सब हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अदायगियों का मज़हर है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। रब कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब काबा हम तमाम लोगों को सुनने से कहीं ज़्यादा अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। और आपके हाफिज़ साहब ने जो तकमील कुरान फरमाया है, नाम क्या है? तंज़ीलुर रहमान नईमी। आपके हाफिज़ साहब ने जो तरावीह की तकमील फरमाई है, हाफिज़ तंज़ीलुर रहमान साहब नईमी क़िबला, बड़े खुश नसीब हैं कि इन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल किया है। कुरान पाक की तिलावत आप भी क्या करें। फरमाया है मन क़रा हरफन फलहु अशरु हसनात, जिसने एक हर्फ भी पढ़ा वो 10 नेकियों का मुस्तहिक है। और रमज़ान में तो बाज़ ने कहा है डबल मिलेगा, बाज़ ने कहा है 10 गुना मिलेगा। तो बड़े खुश नसीब हैं इन्होंने तकमील कुरान फरमाया है। रब कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ कि हम तमाम लोगों की तरावी को आप उठिए, आप अब आपके हाफिज़ साहब क़िबला की गुलपोशी करने के लिए आप सैयद साहब जनाब इकबाल साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, अब्दुल करीम खान साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं और दीगर हज़रात भी तशरीफ ला रहे हैं। इनकी ये गुलपोशी फरमाएंगे और अपने आप हाफिज़ साहब क़िबला की गुलपोशी अपने माथों की निगाहों से ज़ियारत करें और ये यकीन रखें कि हाफिज़ के चेहरे की ज़ियारत भी बाइस सवाब है और बाइस खैर व बरकत है।